वेलकम बैक अगेन इन एसक्यूएल। मिलते हैं आज हम लोग देखेंगे बेस्ट टॉपिक के साथ। ओके, दिस इज अ क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाई दिस इज come in SQL. Just understand one main topics. This is increase the speed up of your query process. Okay, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि लाइक इंडेक्स क्या होता है। पहले सिंपल वर्ड में, ठीक है। सपोज टेक एग्जांपल। ओके, सपोज यू हैव वन टेक्स्ट बुक्स। ओके, you have one text books. In a textbooks, you can suppose you have to find or you have to go to some particular chapter. What you will do? You will go to that index, okay, and find the page number of that chapter, and go directly to the page without the. Okay, so this is like a faster way. Suppose you don't have the index page. You don't have the index page, and I told you like just go to that chapter. Okay, so what you have option? You have to one by one paper, just you have flip and check, flip and check, flip and check. Like this is this chapter now. When you got the page, you stop it. Okay, so the second option is very slow option. The second option is very slow option. If you have the index, means the speed of data is very fast. In a similar way, SQL will also apply the same logics. Okay, the same logic apply the SQL. When you, I will today what I will show you. Just I will create one table. Okay, I will create one table and insert some record, dummy record, and I'll show you what is happening, what is the use of collection, how it's behave. Okay, so let's start with creating one table. See, first this is the student table. I am going to create a table. Wait, I am connected already. Just wait. I'm opening my database using Bugstop here. Okay, database Bugstop here. Yeah, one second. Yeah, okay. See, this is my table. Okay, now I am removing the primary key first. Just check the like what's happening. I am removing the primary key. I have run the execute the query. You can see this is a select start from student. Okay, so this is my dummy table. Okay, now I am inserting the record. I am inserting the record into the table. So currently the table which I have created now, this is without index. This is without index. So I have run the dummy data. Take record inserted. Now just check like the first column ID1. I first enter the 6 ID, then enter 2 ID, enter 9 ID, enter 3, 1, 4, 7, 5, 8, 10. This is a random number. Random number means there is nothing order. Okay, if you check the data, see the data 6, 2, 9, 3, like the same way which I have insert here, the same record is available here. Okay, now is in this way. Suppose if I find some data like select star from student, okay, and ID is equal to 10 I pass here. ID or yes, ID here is where. Now suppose मैंने एक query run किया, then what will happen now? In this case, what SQL will do? SQL will check every row. Like here, they check every row. Means they don't have the indexes. They don't have the indexes. So they check like this is 10, no, this is 10, no, this is 10, no, this is 10, no. Where they got the 10, they return that row. Where they got the 10, they return that row. Okay, this is without cluster index. So without index. Now, and one more thing. Suppose this is I have created the table.
Okay, you can check any index is created or not. Just go over there in table and check any index is created on that table or not. So you can open the table, go to the student and clear the index. We don't have the index. Okay, now I am creating another table like student 1 with primary key. Okay, with primary key. Okay, it's done. You can check the data. You don't have the record. Now I'm inserting the table here. Okay, table record inserted. You can check the data. Check only table. See the record. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is the magic of the primary key. Got it? इन द स्टूडेंट टेबल अगर आपको याद होगा तो अगर हम लोगों ने ADD डेटा पास किया था लाइक विदाउट ऑर्डर वाला, इसी रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड स्टूडेंट वाले टेबल में है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. इट मीन्स व्हाट यू नो. सी ये आपका ऐसे था, सेम हम लोग यहाँ पर नहीं इंसर्ट किया, बट ये ऑटोमेटिक आपका क्या हुआ, ऑर्डर में चला गया. तो होता क्या है, जब हम लोग प्राइमरी की अप्लाई करेंगे किसी टेबल पे, प्राइमरी की अप्लाई करेंगे किसी टेबल पे, उस केस में आपका वो कॉलम ऑटोमेटिक क्लस्टर्ड इंडेक्स बन जाता है. जस्ट हियर इंडेक्स हियर, ये आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा इसके ऊपर. ये आपका कौन सा लगा, यहाँ पे देखो क्या है, क्लस्टर इंडेक्स. अगर आपको चेक करना है कमांड के थ्रू, तब आप ये भी चेक कर सकते हो कि इस टेबल पे कितने इंडेक्सेस लगे हैं. तो कमांड यहाँ पे आपका ये है लाइक exec एग्जीक्यूट esp_underscore help इंडेक्स. कौन सा टेबल पे, स्टूडेंट 1 पे. ओके, अगर मैं इस पर चेक करूंगा कि इस पर कोई इंडेक्सेस लगा है तो मुझे बताएगा यस यू हैव द प्राइमरी की कॉलम एंड क्लस्टर इंडेक्स. जो नहीं प्राइमरी की लगा यहाँ पे है. ओके, you can check in student also. In student we don't have any indexes here. Okay, so it means क्या होता है पता है, अगर प्राइमरी की लगता है तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये जो आपका कॉलम था, सॉरी ये जो आपका आईडी था, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में सेट हुआ ऑटोमेटिक. आप कैसे भी रिकॉर्ड इंसर्ट करो वो ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में एक इंडेक्सिंग में से होगा. और कभी भी जब आप इसको आईडी कंडीशन 10 दोगे ना, वो डायरेक्टली 10 नंबर पे जाएगा, आपका डेटा लेके आ जाएगा. डायरेक्टली 10 नंबर पर जाएगा, आपका डेटा लेके आ जाएगा. अभी देखा यहाँ पे रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है, रिकॉर्ड कम है, तो यहाँ पे अभी आपको पता नहीं चलेगा. अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ, मान लो विद द एग्जीक्यूशन प्लान. ओके, यू कैन चेक हियर, यू कैन चेक हियर आईडी क्या है यहाँ पे. हाँ, ये देखो, ये दोनों डिफरेंस देखो, आपको इतने से ही मालूम पड़ जाएगा. ओके, जो मैं ऊपर वाला कमांड है दिस वन, फर्स्ट वन, ये आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं, इसके ऊपर ये जो है इस पर क्लस्टर्ड इंडेक्स देखो यहाँ पे दिखा रहा है, क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा है. ओके, तो यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो आप वो ये देखो नीचे जो यहाँ पे दिया है एस्टिमेट नंबर ऑफ रो टू बी रीड, मतलब कितने नंबर को रीड किया है, 10 नंबर को, 10 रो को रीड किया है. और रिजल्ट कितना लेके आया, एक ही रिजल्ट लेके आया. एस्टिमेट नंबर ऑफ रो पर एग्जीक्यूशन कितना दिया, 1 दिया है. बट वही अगर मैं नीचे चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिया है, एस्टिमेट नंबर ऑफ रो टू बी रीड, एक ही रिकॉर्ड रीड किया और आपका डेटा लेकर ला के दे दिया है. मतलब इस केस में उसने जितना अपने पास रिकॉर्ड था, 10th रिकॉर्ड था, दे चेक्ड ऑल द रो, बट हियर दे चेक्ड ओनली 1 रो वेयर इंडेक्स इज मैच्ड. So definitely you can understand like what is the fastest way. Okay, so in this case the CPU cost you can check 0.001581 and here 0.08951. अभी आपका 10 ही रिकॉर्ड है. ओके, मान लो ये कभी लाख रिकॉर्ड होता, 1000 करोड़ों में रिकॉर्ड होता, उस केस में क्या होता है, कितना टाइम लगता. अगर 1 करोड़ डेटा है आपके पास, मुझे एक ही आईडी चाहिए और उस पर इंडेक्स नहीं लगाया, तो आपका सिस्टम, वो CPU एक एक रिकॉर्ड को चेक करेगा जब तक उसको मिलेगा नहीं. अगर इस केस में जाता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना भी रिकॉर्ड रहे बट वो एक ही रिकॉर्ड को चेक किया है जहाँ पे आईडी मिला है. ओके, तो ये बेनिफिट है. तो इससे क्या हुआ, आपका सिस्टम फास्ट, यहाँ पे रिकॉर्ड फास्ट चल रहे हैं. देखो, अगर आपने प्राइमरी की लगाया है, इस पर ऑटोमेटिक क्लस्टर्ड इंडेक्स लग जाता है. बट किसी अदर कॉलम पे अगर क्लस्टर इंडेक्स लगाना है, आप वो भी लगा सकते हो.
बट ये ध्यान दो, क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल में एक ही हो सकता है। अगर आपको किसी और कॉलम पर क्लस्टर इंडेक्स लगाना है, आपको पहले वो डिलीट करना पड़ेगा जो प्रीवियस क्लस्टर इंडेक्स है। तो मान लो अगर मैं इस टेबल पे स्टूडेंट 1 पे जेंडर पे लगाना है या सिटी पे लगाना है या दोनों दो कॉलम को कंबाइन करके लगाना तो भी लग सकता है। ओके, सो एक काम करो, तो पहले मैं क्या करूँगा, चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। किसको? यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको राइट क्लिक किया और इसको डिलीट किया, तो मेरा क्लस्टर इंडेक्स यहाँ से हट गया। अभी इन प्रोसेस है, अभी नाउ इट्स डन, अभी हो गया। अगर मैं यहाँ पे CPU इसका एग्जिस्टेंस चेक करूँगा, इस केस में मुझे दोनों में सेम टाइम लगेगा। यहाँ पे भी देखो 10 रिकॉर्ड चेक ये रिकॉर्ड लेके आया, यहाँ पे भी 10 रिकॉर्ड चेक करके एक रिकॉर्ड लेके आएगा। मैं यहाँ पे था, सॉरी इधर था ना, हाँ ये। ओके, सो यहाँ पे भी देखो उसको 10 रिकॉर्ड चेक किया, एक रिकॉर्ड लेके आया, यहाँ भी 10 रिकॉर्ड चेक करके एक रिकॉर्ड लेके आया। तो अभी प्राइमरी के इस पर क्लस्टर इंडेक्स नहीं है, तो हम लोग क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं। तो इसका कमांड है क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। ये मैं दोनों का कमांड रखा हूँ, तो आप लिखो क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, इंडेक्स का नाम दो, ऑन किस टेबल पे किस कॉलम पे देना है। ओके, तो मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं बोलता हूँ मुझे क्लस्टर इंडेक्स बनाना है और इसका नाम मैं सपोज ये रख रहा हूँ, तो जेंडर इन स्कोर पे, तो स्टूडेंट 1 पे मैं जेंडर पे रख रहा हूँ और टोटल स्कोर पे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे जेंडर पे रखा है और टोटल, तो दो कॉलम्स आपने कम, मैं एक भी कर सकता हूँ, अगर नहीं चाहिए तो आप एक भी रख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस पे इंडेक्स बनाया तो देखो क्या होगा, जेंडर आपका असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, टोटल स्कोर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपका डेटा उस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अगर आप टेबल को ओपन करोगे तो देखो आप डेटा कैसे हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया। कैसे हुआ? 21 पेज में हुआ, आपका जेंडर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया अभी, और टोटल स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जेंडर आपका असेंडिंग ऑर्डर में आया और टोटल स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस ऑर्डर में ये डेटा वापस से रीअरेंज हो गया। अभी जैसे क्लस्टर इंडेक्स बना वैसे रीअरेंज हो गया। ओके, तो क्लस्टर इंडेक्स आप यहाँ पे इसका एक बेसिक समझ लो क्या क्या है क्लस्टर इंडेक्स यहाँ पे। सो क्लस्टर इंडेक्स यू कैन क्रिएट ओनली वन ऑन अ टेबल। ओके, एंड क्लस्टर इंडेक्स आपका जो रिकॉर्ड सेव करता है। हाँ देखो, इसमें एक पॉइंट और था अभी, जो क्लस्टर इंडेक्स आपका जो रिकॉर्ड बनाता है ना क्लस्टर इंडेक्स, वो एक्चुअल क्या करता है, जो सेव होता है वो होता है आपका टेबल के ऊपर, इसका अलग से रिकॉर्ड नहीं बनता। मत समझे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाऊंगा तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होगा, वो वर्चुअल टेबल में सेव नहीं होगा। नॉन क्लस्टर इंडेक्स वर्चुअल टेबल में सेव नहीं होगा। इट मीन्स अगर मेरा एक टेबल है, ध्यान देना ये मेरा टेबल है, तो क्लस्टर इंडेक्स जब मैंने यहाँ पे बनाया तो क्लस्टर इंडेक्स टेबल के अंदर ही अपना इंडेक्स लेकर रखेगा। बट अगर मैं वहीं पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाता हूँ, दिस वन नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ये क्या करेगा, आपका जो कॉलम पे आपने ये रखा है नॉन क्लस्टर इंडेक्स का कॉलम, उसका फॉर्मेटिंग वो अलग टेबल में, अलग वर्चुअल टेबल में लेकर रखेगा अपने लिए वो। और जब हम लोग उस पर फाइंड करेंगे तो पहले जाएगा वहाँ पे कि उसका इंडेक्स क्या है, उस इंडेक्स से आएगा इसके पास आएगा। ठीक है, तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स आपका थोड़ा स्लो हो जाता है कंपेयर टू क्लस्टर इंडेक्स, क्योंकि उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। वो पहले क्या करता है, जो डमी रिकॉर्ड रखा है, अगर मान लो ये सेम चीज़ मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स कितना भी अपने टेबल बना सकता हूँ, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाया यहाँ पे, ओके, मान लो मैंने जेंडर बना दिया, ओके, तो इस केस में क्या होगा, अगर ये नॉन क्लस्टर जो बना अभी, इसमें क्या होगा, इसको आपका डेटा जो बना है ना, इससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा, ऑर्डरिंग में या किसी में कुछ अफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो इस रिकॉर्ड को कैच कर उठाता है और अपने अलग अलग जगह टेबल में रिकॉर्ड रखता है अपने लिए, इंडेक्स बना कर रखता है। और जब आप इसके जेंडर पे वेयर के लिए लगाओगे, ऐसा वेयर लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, उस केस में अगर मैंने यहाँ पे सपोज अप्लाइड किया जेंडर इज इक्वल टू यहाँ पे मेल, तो पहले ये जाएगा किसके पास मालूम है, जो अपना अलग से रिकॉर्ड बना के रखा वहाँ पे जाएगा, वहाँ से इंडेक्स लेके आएगा, डायरेक्टली वो रिकॉर्ड ला के दे देगा आपको। ये करता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। इस केस में इसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स आपको यहाँ पे फास्ट है।
ओके, तो मैंने एक बेस्ट एग्जांपल अपने हिसाब से जो आपको ईजीएस्ट वे रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाया है। ओके ओके गाइस, सो क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स में इतना ही है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप देखो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट है कमेंट करो, आपको अच्छे से दूसरा एग्जांपल देख के बताऊंगा अगर नहीं समझ में आया तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।